Can you respond to the call of Dr. Mashilkar that he gave in Sydney, that India needs, India gave in 20th century Gandhi, and now India should give Gandhi in engineering. So we thought of let's take this mission ahead. Gandhiji always used to say that there is enough for everyone's need, but not for everyone's greed. We will be able to find ways in which no child of our country should remain devoid of access to content. We may not be able to get good teachers everywhere, but we can get good content everywhere. This is a mini cupola furnace, a smaller part of panels. Agarbatti is made by up to 50 to 60 psi. Yes. You can get up to 0 degree or even minus. Don't compromise with your curiosity. If you have a question, there is somebody available in the country to answer that question. This oil testing unit, we can check the insulation of the oil. But the breakdown strength can be checked by this instrument. And this is with this instrument, we can check the insulation breakdown as per the highest standard. जो फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए है, जिसके मतलब दोनों हाथ ऊपर पैरालाइज हो और नीचे दोनों पैर पैरालाइज हो, लेकिन वो व्हीलचेयर कैसे चला देंगे, किसी और के सपोर्ट से चलाना पड़ेगा उनको, तो वो खुद चला सके, इसलिए हमने उसके तीन सिस्टम डाले हुए हैं। फर्स्ट है टंग ड्राइव सिस्टम, जिसके दोनों हाथ पैर और पाँव नहीं चलते हो, तो खाली ऐसे टंग के मूवमेंट से व्हीलचेयर चला सकते हैं। जैसे यूँ करेंगे, इधर टच सेंसर डालेंगे, वैसे इधर प्रेशर स्विच दिया है हमने। जस्ट इन ओरिजिनली रियल व्हीलचेयर में हम टच सेंसर इधर डालने वाले हैं। जो ऐसे टच सेंसर जैसे मूवमेंट करेंगे टंग को, ऐसे तो राइट टर्न लेगा, यूँ तो लेफ्ट टर्न लेगा, और ऐसे फॉरवर्ड के लिए यूँ नीचे दूसरा सेंसर, 3 सेंसर ऐसे देंगे, और ऐसे ही हाँ देख सकते हो वैसे। और हेड मूवमेंट के लिए भी है, जैसे हेड में यूँ टर्न लेंगे, ये देखो प्रेशर पैड से ये ऐसे यूँ करेंगे तो राइट टर्न लेगा, और यूँ करेंगे लेफ्ट टर्न, और दोनों साथ में दबाएंगे ना तो सीधा चलेगा। फ्रिज में जैसा जनरल पर्पज़ है, इट मीन्स जो रेगुलर जो हम फ्रिज यूज़ करते हैं, इसमें क्या होता है, हीट लॉस होता है एट द बैक साइड। जो बैक साइड हीट लॉस होता है मैंने यूटिलाइज़ किया है गर्म पानी करने में, एज वेल एज 20% एनर्जी सेविंग होता है। 20% एनर्जी सेविंग इट मीन्स द बिग टर्म। ये तो वन ऑफ द एग्जांपल है। सपोज इसको बहुत सारे अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह वाटर कूलर है, मॉल एयर कंडीशन सिस्टम है, जिसमें अप्लाई करके बहुत सारा एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। इसमें जनरली ऐसा किया है कि इसमें 2 कंडेंसर होते हैं। पहले जो होता है फ्रिज में वो एयर कूल कंडेंसर होता है, मैंने इसमें ऐड किया वाटर कंडेंसर। कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट निकलता है, इस गोज टू द फर्स्ट वाटर कंडेंसर, देन आफ्टर गोज टू द एयर कूल कंडेंसर। इट मीन्स द हीट लॉस दिस यूटिलाइज इन द वाटर कूल कंडेंसर, देन आफ्टर इज गोज टू द एयर कूल कंडेंसर। This is the basic idea, a basic concept and basic phenomenon of this project. Form a large part of life today. Can you believe there are 58,000 deaths across the globe just because of nosocomial infection? What good is an Android phone if you are going to be bed and sick? Our project is based on one such issue, that is hospitals ensure very hard to prevent nosocomial infections, but they change only the bed sheets but not the mattress, and this glaring omission was noted by 2 of us when we went for a summer traineeship to the hospitals. And during that time we saw that they were only changing the sheets between the patients. They were not doing anything for the mattresses, and that's how our thought process began. And we started working on it, and there were many options available for disinfecting this, and one was the radiation and steam sterilization. Obviously it would take long time, so next we thought why can't we use a chemical so that the mattress will be disinfected. So this is एग्रीकल्चर पंप है जो पहले खेडूत था, वो इधर इस पंप को कैरी करके पूरे खेतर में घूमता था। इधर ये ट्रॉली फिट की है, जिसके कारण इधर
इधर मूव होगा और ये व्हील के कारण या रोटरी मोशन होगा, रोटरी मोशन का इधर रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होगा और ये पंप है जिसके कारण हमें यहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा और प्रेशर के कारण हम दवा पाक में लगा सकते हैं। यहाँ ये जो रोटरी मोशन हो रहा है इसलिए पंप मूव अप होगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन। Basically, it's automatic railway gate with two tracks. One is upgoing side and second is down side. हम लोगों ने इसमें और गेट प्रिंसिपल को यूज़ में लिया है और बेसिकली अगर ट्रेन आती है तो ये गेट क्लोज हो जाएंगे और ट्रेन अगर चली जाती है तो गेट ओपन हो जाएंगे। इवन अभी तक जो इन्वेंशन हुआ है इस पे इनोवेशन जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ सिंगल ट्रैक के लिए है, बट दिस इनोवेशन इज फॉर डबल ट्रैक सिस्टम। वी हैव जस्ट यूज्ड ट्रांसमीटर, रिसीवर, इनकोडर, डिकोडर एंड अ माइक्रो कंट्रोलर इन सारे सिस्टम पे। और फिर मोटर ड्राइविंग सर्किट है। एज फार एज माइक्रो कंट्रोलर कंसर्न, ये जैसे इंस्ट्रक्शन देगा वैसे काम करेगा। इवन इसमें हम लोगों ने चेन पुलिंग से लेके सब कुछ को हम लोगों ने इंक्लूड किया। सारे जितने भी हो सकते हैं कंडीशन, सारे कंडीशन को अप्लाई करके हम लोगों ने इसकी प्रोग्रामिंग की है। It is the universal drilling machine based on the servo mode. Here the universal drilling machine based with a numeric control system, NC system. Here all the axes, x-axis, y-axis and z-axis are provided with individual servo motors. It is used for the engraving. The coded information for each of the workpieces has to be provided to the NC system, and so on. It is going to perform here. The engraving is done. The LC Institute of Technology, we have engraved the LCIT in the name of our college. सिस्टम है वो क्या है कि जब हम कार या बाइक चलाते हैं तो अगर गाड़ी फुल स्पीड पे होगी अगर तो क्या है उसके अगर ब्रेक मारेंगे तो क्या है कि व्हील लॉक हो जाएंगे, तो क्या है उसकी वजह से ना गाड़ी स्किड हो जाएगी, तो उस क्या है वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसमें क्या है कि सेंसर लगाया हुआ है, इससे क्या होगा व्हील का आरपीएम यूज मेजर करेंगे। उससे क्या है कि अगर ये व्हील घूमता है तो इससे ना ब्रेक मार के छोड़ देगा, तो क्या स्पीड कंट्रोल हो सकता है। और अभी जो ब्रिज बन रहे हैं उसमें व्हीकल्स ऊपर और नीचे दोनों तरफ चलते हैं, बीच में जो स्पेस होती है उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो अगर उसका ब्रिज की हाइट बढ़ा दे तो तकरीबन 9 से 10 मीटर तक की, और बीच में आइस जो ऊपर का रोड होता है उसके नीचे आइस सेक्शन लगा दे, और नॉर्मल जो बस में होती है व्हील प्लेट नीचे की साइड होती है और उसको उल्टा करके ऊपर व्हील प्लेट लगाए और आइस सेक्शन में उसको रख के चला तो उसको मतलब ट्रैफिक सॉल्यूशन भी हो जाएगा और ट्रैवलिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। उसको बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। मशीन होता है उसमें ड्राइव करते हैं मोटर से, तो मोटर इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट ऑपरेट होती है। तो इसमें क्या है बाइसिकल की जो एक्सरसाइज करते हैं ना ऐसे पुट करेंगे, इसमें क्लोथिस हो गए वो पुट कर देंगे डिटर्जेंट और वाटर डाल के, तो उसको रोटरी मशीन यहाँ पे करेंगे तो ये रोटरी जैसे कंपेरेटिव वॉशिंग मशीन में वर्क होता है वो ऐसे ही होगा, बट इलेक्ट्रिसिटी से वो होगी और हेल्थ भी मेंटेन होगा। इसमें जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वॉकिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी, सुबह में जो होगा This is a water distributor which uses the sun energy. We put the whole provided over here. We put the saline water, the salty water over there. When that saline water vaporizes, that is stored on this dome, the inner side of the dome. When that vaporized water condenses, that will be stored in a tank which we provided on the inner side, and that whatever we have that's stored water is a distilled water, and that can be used for the medical purposes and life all that. And the impurities are removed from the water. ये सिस्मोग्राफ है जो अर्थक्वेक मेजर करेगा। अर्थक्वेक मेजरमेंट के लिए हमने डिज़ाइन बनाई है प्लेट के लिए, जो ये डिज़ाइन इस तरह है। जो प्लेट होती है उसके साथ एक केबल कनेक्ट होगा, उसके साथ पेंडुलम कनेक्ट होता है, जो ऑसिलेटिंग होगा तब रीडिंग बताएगा। जो ऑसिलेटिंग है वो रिचर्ड स्केल का जो मैग्नीट्यूड है वो मेजर करके बताएगा। और इसको स्टॉप करेंगे हम, इसको स्टॉप करेंगे, इससे ग्राफ जो कैलकुलेट होगा वो ग्राफ बताएगा। टाइम जो जिस टाइम पे अर्थक्वेक आएगा वो उसका टाइम होगा, तो टाइम नोट करके डेट और टाइम दोनों सेट करेंगे। फिर जो आएगा जो ग्राफ बताएगा कितने टाइम पे ये अर्थक्वेक आया और कितना आया, कितना रिचर्ड स्केल का आया। अर्थक्वेक मेजर करने के लिए रिचर्ड स्केल होता है। हमने इसको जो इक्वेशन आता है, इक्वेशन से एपिसेंटर जो हमें 100 किलोमीटर में 4 रख देते हैं, जो हम हिल स्टेशन होता है, गार्डन होता है, जहाँ मशीन वाइब्रेशन ना हो तो वहाँ जगह रख देते हैं। हमको बताएगा कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा, ये ग्राफ बताएगा। We are coming from SR Bade Engineering College, Dabi, Unja.
Our project name is computerized security system. This computerized security system give protection from thieves and fire. હું બરોડાથી છું, ડિપ્લોમા સિવિલ મારું બેઝિક બેકગ્રાઉન્ડ છે. મેં વોટર ફ્યુલ સિટ બાઇક બનાવ્યું છે. આ બાઇકની અંદર 80% પાણી અને 20% પેટ્રોલથી ચાલે છે. આની અંદર પાણીમાંથી અમે હાઇડ્રોજન ગેસ અલગ પાડીને યુઝમાં લઈએ છીએ અને આનાથી બાઇકની એફિશિયન્સી વધે છે. બાઇકની એફિશિયન્સીની અંદર 5થી લઈને 10% સુધી એવરેજમાં વધારો થાય છે. પ્લસ 5થી લઈને 10% સુધી હોર્સ પાવર વધે છે અને 10થી લઈને 100% સુધી એવરેજ વધે છે. પ્રોપર આ બાઇકની વાત કરીએ તો બાઇક 50-55થી વધારે એવરેજ નથી આપતું. કીટ લગાવ્યા પછી બાઇકની અંદર અત્યારે 86 થી 96 ઓન રોડ સિટીમાં એવરેજ આપે છે અને 112 હાઈવે પર એવરેજ આવે છે. આનાથી બાઇકમાં બીજો પ્લસ પોઈન્ટ એ છે કે આની અંદર 95% અબવ કાર્બન રિમૂવ થઈ જાય છે. મારી પાસે પીયુસીનો રિપોર્ટ છે. પીયુસીના રિપોર્ટ્સની અંદર તમે જોશો તો અહીંયા બાઇકની અંદર કાર્બનનું પ્રમાણ હતું અહીંયા 1.228 છે, જે ઘટીને 5 જ મિનિટમાં કીટમાં 0.053 થઈ જાય છે. એટલે ગ્લોબલ વોર્મિંગ માટે બહુ સારું હોય છે. મારી પાસે બીજો દિલ્હીનો ડેટા છે, જે દિલ્હીના ડેટાની અંદર સૌથી વધારે વ્હીકલ પોલ્યુશન થતું હોય 72% પોલ્યુશન થાય છે વ્હીકલથી. તો આ બધી વસ્તુ આ કીટ તમે વ્હીકલમાં યુઝ કરવામાં આવે તો કાર્બનનો પ્રોબ્લેમ રિમૂવ કરી શકો છો. બીજો પ્રોબ્લેમ છે કે સ્ટાન્ડર્ડ કન્ડિશનની અંદર કે દિલ્હીની અંદર એક સર્વે થયો હતો 2000 સાલની અંદર, જે સર્વેની અંદર એક દિલ્હી સિટીની અંદર 2000ની સાલની અંદર સર્વે વ્હીકલથી પોલ્યુશનની અંદર કાર્બનનું પ્રમાણ 421.84 ટન પર ડે નીકળે છે કાર્બન. જો આ જ વસ્તુ ત્યાં યુઝ કરવામાં આવે તો દિલ્હીનું 4 થી 5 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર ડાઉન થઈ શકે છે. એટલે આ સિસ્ટમ અને આખા ઇન્ડિયામાં કે આખા વર્લ્ડમાં યુઝ કરવા તો ગ્લોબલ વોર્મિંગનું નામ લોકો શબ્દ ભૂલી જશે. એવરેજમાં બી છે અને પેટ્રોલ ફ્યુલ સેવ બી કરે છે અને એન્વાયરમેન્ટને બી સેવ કરે છે. संवेदना है कि ये देखते हैं आसपास ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है, इसको अच्छी तरह से बनाना चाहिए, लोगों को कम कष्ट होने चाहिए, ऐसा विचार करके इन्होंने इनोवेशन किए हैं. तो जैसे कि हम कंपैशन कहते हैं ना दिल में, ऐसे कंपैशन से उन्होंने किए हैं.